गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एडवेंचर जो हमारा चैप्टर है हॉर्नबिल का, चैप्टर नंबर 7, उसका जो पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इससे पहले की 2 पीपीटीज में बताया, वही एक्सप्लेनेशन आज मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। पेज नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं हम लोग एडवेंचर का आगे का पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन। So please listen very carefully, which is most important to you. If you are not interested to read this chapter, you only to listen the explanation which was paragraph wise in the previous PPT. So first you open that PPT and listen the explanation paragraph wise carefully and understand it. Then after you heard this PPT and heard the paragraph wise explanation. Okay, now I want to start the paragraph. I was thinking of the catastrophe theory and its implication for history. Right, I thought so. Rajendra smiled. Don't smile smugly, in case you think that it was just my mind playing tricks and my imagination running amok. Look at this. And triumphantly, Professor Gaitonde produced his vital piece of evidence, a page torn out of a book. Rajendra read the text on the printed page, and his face underwent a change. Gone was the smile, and in its place came a grave expression. He was visibly moved. चलिए अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जो कि हिंदी में है, क्योंकि इसकी समरी ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्शन और समरी इंग्लिश में पहले बता ही चुकी हूँ। मैं इस प्रलय के सिद्धांत और उसके इतिहास के लिए आशय के बारे में सोच रहा था। ठीक, मैंने यही सोचा था। राजेंद्र मुस्कराया। ऐसे आत्मसंतोष से मत मुस्कुराओ। उस स्थिति में तुम सोचते हो कि यह मेरा मस्तिष्क है जो दांव खेल रहा हो और मेरी कल्पना आवेशित हो गई है, तो इसे देखो। और जीत की भावना से प्रोफेसर गायटुंडे ने साक्ष्य का एक अपना महत्वपूर्ण प्रमाण पेश किया। एक किताब से फाड़ा गया एक पन्ना। राजेंद्र ने उस छपे पेज के व्याख्यान को पढ़ा। वह उसका चेहरा परिवर्तित हो गया। मुस्कुराहट जा चुकी थी और उसकी जगह एक गंभीर भाव था। वह दर्शनीय रूप से द्रवित हो गया था। गंगाधर पंत pressed home his advantage. I had adventurely slipped the Bakhar in my pocket as I left the library. I discovered my error when I was paying for my meal. I had intended to return it the next morning, but it seems that in the milieu of Azad Maidan, the book was lost. Only this torn off page remained. And luckily for me, the page contains vital evidence. Rajendra again read the page. It described how Vishwasrao narrowly missed the bullet and how that event, taken as an omen by the Maratha army, turned the tide in their favor. Now look at this. Gangadhar Pant produced his own copy of Bhau Sahib Banchi Bakhar, opened at the relevant page. The account ran thus. And then Vishwasrao guided his horse to the melee where the allied troops were fighting, and he attacked them, and God expressed his displeasure. He was hit by the bullet. गंगाधर पंत ने अपनी श्रेष्ठता को प्रकट किया। मैंने बिना जाने बाखर को मेरे पॉकेट में ठूस लिया।
जब मैंने लाइब्रेरी छोड़ी थी। मुझे अपनी गलती तब मालूम हुई जब मैं भोजन का पैसा दे रहा था। मैंने उसे अगले दिन सुबह वापस करने की सोची थी, पर ऐसा लगा कि मैंने उसे आज़ाद मैदान की भगदड़ में खो दिया था। केवल ये फाड़ा हुआ पन्ना रह गया। सौभाग्य से यह पृष्ठ का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। राजेंद्र ने पृष्ठ को फिर पढ़ा। वह वर्णित कर रहा था कि विश्वासराव किस तरह बुलेट से बच गए थे और किस तरह इस घटना को एक शुभ शकुन मानकर मराठा सेना ने उस ज्वार को अपने पक्ष में कर लिया। अब इसे देखो। गंगाधर पंत अपने बाऊ साहेबाची बाखर को संबंधित पृष्ठ पर खोला। वर्णन कुछ इस प्रकार था। और फिर विश्वासराव ने अपने घोड़े को संघर्ष स्थल पर दौड़ाया जहाँ श्रेष्ठ सेनाएं लड़ रही थी और उसने उन पर आक्रमण किया और ईश्वर ने अपनी अप्रसन्नता जाहिर की। उसे एक गोली लगी। प्रोफेसर गायतुंडे, you have given me food for thought. Until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy. But facts can be stranger than fantasies, as I am beginning to realize. Facts. What are the facts? I am dying to know, Professor Gaitunde said. प्रोफेसर गायटोंडे, तुमने मेरे विचारों के लिए भोजन दिया है। जब तक मैंने इस पारदर्शी प्रमाण को नहीं देखा था, मैंने तुम्हारे अनुभव को कल्पनाएं माना था। किंतु तथ्य कल्पनाओं से अजीब हो सकते हैं, जैसा कि अब मैं जानने लगा हूँ। तथ्य? तथ्य क्या है? मैं जानने के लिए मरा जा रहा हूँ, प्रोफेसर ने कहा। राजेंद्र motioned him to silence and started patching the room. Obviously, under great mental strain, finally he turned around and said, Professor Gayatunde, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today. Whether I succeed or not in convincing you of the facts, only you can judge, for you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly, a catastrophic experience. राजेंद्र ने उसे चुप रहने का संकेत दिया और कमरे में टहलने लगा। स्पष्टतः यह मानसिक तनाव था। अतः वह मुड़ा और कहा, प्रोफेसर गायतुंडे, मैं तुम्हारे अनुभव को दो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तर्कसंगत ठहराऊंगा। मैं इसमें तुम्हें तथ्यों को समझाने में सफल होता हूँ या नहीं, ये तुम ही जान सकोगे, क्योंकि तुम सत्य में एक अनोखी अनुभव से गुजर रहे हो, या सही रूप में कहें, एक महाविपत्ति के अनुभव से। Please continue, Rajendra. I am all ears, Professor Gayatunde replied. Rajendra continued patching as he talked. You have heard a lot about the catastrophe theory at that seminar. Let us apply it to the Battle of Panipat. Wars fought face to face on open ground offer excellent example of this theory. The Maratha army was facing Abdali's troops on the field of Panipat. There was no great disparity between the latter's troops and the opposing forces. Their armor was comparable, so a lot depended on the leadership and the morale of the troops. The juncture at which Vishwasrao, the son of the heir to the Peshwa, was killed proved to be the turning point. As the history has it, his uncle Bhau Sahib rushed into the melee and was never seen again. Whether he was killed in battle or survived is not known. But for the troops at that particular moment, that blow of losing their leaders was crucial.
They lost their morale and fighting spirit. There followed an utter rout. अब वो कहते हैं, कृपया जारी रखें राजेंद्र, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। प्रोफेसर गायतुंडे ने उत्तर दिया। राजेंद्र ने टहलना जारी रखा। तुमने उस सेमिनार में महाविपत्ति सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। उसे इस पानीपत के युद्ध में भी लागू करो। आमने सामने की खुले मैदान में लड़ाइयाँ उस सिद्धांत के बढ़िया उदाहरण हैं। मराठा सेना पानीपत के मैदान में अब्दाली की सेना का सामना कर रही थी। दोनों सेनाओं में कोई ज़्यादा या कम नहीं था। उनके अस्त्र शस्त्र भी समान थे, इसलिए बहुत कुछ नेतृत्व पर और सेना की मनोदशा पर निर्भर था। संकट काल में जब विश्वासराव पेशवा के पुत्र और उनके वारिस मारे गए तो यह एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। जैसा कि इतिहास कहता है, उनके चाचा भाऊ साहब उस मुठभेड़ में तेजी से उतरे और फिर देखे नहीं गए। वे मारे गए या जीवित पता नहीं, किंतु सेना उस खास बिंदु पर अपने नेता के खोने से संकट में थी। उन्होंने अपनी मनोदशा व लड़ने की भावना को खो दिया। सब कुछ उजड़ चुका था। Exactly, Professor, and what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle when the bullet missed Vishwasrao, a crucial event gone the other way, and its effect on the troops was also the opposite. It boosted their morale and provided just that extra impetus that made all the difference, Rajendra said. Maybe so. Similar statements are made about the Battle of Waterloo, which Napoleon could have won. But we live in a unique world which has a unique history. This idea of it might have been is okay for the sake of speculation but not for reality, गंगाधर पंत said. ठीक है प्रोफेसर, और तुमने जो उस कटे पृष्ठ पर बताया है कि जब गोली विश्वासराव पर चूक गई थी, उसने युद्ध का रुख कैसे मोड़ा था। एक और महत्वपूर्ण घटना दूसरे दिन घटी और इसका सेना पर उल्टा प्रभाव पड़ा। इसने उसकी मनोदशा को बढ़ावा दिया और उसे एक आंतरिक प्रचंडता दी जिसने सारा अंतर पैदा किया। राजेंद्र बोला, ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार के वक्तव्य वाटरलू के युद्ध में के बारे में दिए गए थे, जिसमें नेपोलियन जीत गया था, पर हम एक अद्वितीय संसार में रहते हैं जिसका एक अद्वितीय इतिहास है। यह ऐसा होता का विचार अनुमान के लिए ठीक है, परंतु वास्तविकता के लिए नहीं, गंगाधर पंत ने कहा। अब इतने पैराग्राफ को समझाने के बाद मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो मैं आपको पहले इंग्लिश में पढ़ती हूँ फिर समझाती हूँ हिंदी में, तो ध्यान रखना कि आपको भी इसी तरीके से बुक को लेकर बैठना है और एक एक लाइन बाय लाइन को पहले पढ़ना है मेरे साथ, फिर उसके बाद उसकी हिंदी जैसे मैं आपको समझा रही हूँ उसको समझना है। यदि हम नहीं इस तरीके से करते हैं तो ये चैप्टर जो कि थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री रिलेटेड भी है और थोड़ा सा पुरानी बातों के बारे में है, तो आपके लिए समझना कठिन हो जाएगा। क्योंकि यदि हम ध्यान से इस चैप्टर को नहीं समझेंगे तो इससे संबंधित MCQs और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स हम नहीं कर सकते और उनको याद करने में भी हमको प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए प्लीज़ बी अटेंटिव टू हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। I take issue with you there. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange. But please hear me out, Rajan said. Gangadhar Pant listened expectantly as Rajendra continued. What do we mean by reality? We experience it directly with our senses or indirectly via instruments. But is it limited to what we see? Does it have other manifestations? That reality may not be unique has been found from experiments on very small systems of atoms and their constituent particles. When dealing
With such systems, the physicists discovered something startling. The behavior of these systems cannot be predicted definitively, even if all the physical laws governing those systems are known. मैं यहाँ आपको रोकता हूँ। वास्तव में वह मुझे अपने दूसरे बिंदु पर लाता है जो आपको अजीब लगेगा, किंतु कृपया मुझे सुनिए, राजेंद्र ने कहा। गंगाधर पंत ने उम्मीद पूर्वक सुना जैसा राजेंद्र ने जारी रखा। हम वास्तविकता से क्या समझते हैं? हम उसे हमारी इंद्रियों से या यंत्रों से सीधे अनुभव करते हैं, किंतु क्या वह वहीं तक सीमित है जहाँ तक हम उसे देखते हैं? क्या वह अन्य आविर्भाव भी रखता है? वास्तविकता अद्वितीय नहीं हो सकती। ये बात बहुत सूक्ष्म प्रक्रियाओं, अणु और उसके संगठक कणों में पर प्रयोग में पाया गया है। जब इस प्रकार की प्रक्रियाओं को देखा गया तो भौतिक शास्त्रियों ने कुछ चौंकाने वाली बात खोजी। इन प्रक्रियाओं से व्यवहार करते समय कुछ भी निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, भले ही उन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम को जानते हैं। Take an example. I fire an electron from a source. Where will it go? I fire a bullet from a gun in a given direction at a given speed. I know where it will be at a later time, but I cannot make such an assertion from the electron. It may be here, there, anywhere. I can at best quote odds for it being found in a specified location at a specified time. The lack of determinism in a quantum theory, even an enormous historian like me is heard of it, Professor Gaitonde said. So imagine many world pictures. In one world, the electron is found here. In another, it is over here. In yet another, it is in a still different location. Once the observer finds where it is, we know which world we are talking about. But all those alternative worlds could exist just the same. Rajendra paused to marshal his thoughts. एक उदाहरण लो। मैं अपने सोर्स से एक इलेक्ट्रॉन को फायर करता हूँ। वह किधर जाएगा? अगर मैं बंदूक से गोली एक दी हुई दिशा में से एक निश्चित गति में चलाऊं तो मैं जानता हूं कि वह बाद में कहाँ होगी, किंतु मैं ऐसा कथन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं दे सकता। वह यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है। मैं उसके बारे में विषमताओं में कह सकता हूँ कि वह एक निर्धारित समय में एक निर्धारित स्थान पर होगा। क्वांटम सिद्धांत में निश्चितता का अभाव है। मेरे समान एक अज्ञानी इतिहासकार ने इस बात को सुना है, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा। अंततः कई दुनिया के चित्रों की कल्पना करो। एक दुनिया में इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, दूसरे में वह वहाँ होगा और किसी दूसरे में वह और अन्य स्थान पर। एक बार कोई पर्यवेक्षक उसे जहाँ पाएगा, हम जानते हैं कि हम जिस संसार की बात कर रहे हैं, पर वे सभी विकल्पित संसार एक संसार जैसे ही होंगे। राजेंद्र अपने विचारों को सुव्यवस्थित करने के लिए रुके। बट is there any contact between those many worlds? Professor Gaitonde asked. Yes and no. Imagine two worlds. For example, in both an electron is orbiting the nucleus of an atom, like planets around the sun. Gangadhar Pant interjected. Not quite. We know the precise trajectory of the planet. The electron could be orbiting in any of a large number of specified states. These states may be used to identify the world. In state number I, we have the electron in a state of higher energy. In state 2, it is in a state of low energy. It can make a jump from high to low energy and send out a pulse of radiation, or a pulse of radiation can knock it out of state number 2 into state number 1. Such transitions are common in microscopic system. What if it happened on a microscopic level?
Rajendra said. किंतु क्या उन कई संसारों में कोई संपर्क है? प्रोफेसर गायतोंडे ने पूछा। हाँ भी और नहीं भी। दो संसारों के उदाहरणार्थ कल्पना करो, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम नाभि के आसपास घूम रहा है, जैसे कि सूर्य ग्रह जो है वो चारों ओर घूम रहे हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं। गंगाधर पंत ने बीच में जोड़ा। नहीं, एकदम नहीं, हम उस ग्रह के ठीक ठाक घूमने के रास्ते को जानते हैं। इलेक्ट्रॉन बड़ी संख्या में विशिष्ट स्थिति में उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये स्थितियां दुनिया को पहचानने के काम आ सकती हैं। स्थिति नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की स्थिति में हो सकते हैं। स्थिति नंबर 2 में एक धीमी ऊर्जा में हो सकते हैं। वे उच्च ऊर्जा से धीमी ऊर्जा में आ सकते हैं और जा सकते हैं और रेडिएशन की एक पल्स भेज सकते हैं। यह एक पल्स उसे नंबर 2 की स्थिति से नंबर 1 की स्थिति में धकेल सकती है। ऐसे पारगमन माइक्रोस्कोपिक प्रणालियों में प्रचुर होते हैं। क्या हो जब यह एक माइक्रोस्कोपिक स्तर पर हो? I get you. You are suggesting that I made a transition from one world to another and back again, Gangadhar Pant asked. Fantastic, though it seems. This is the only explanation I can offer. My theory is that catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. It seems that so far as reality is concerned, all alternatives are viable, but the observer can experience only one of them at a time. By making a transition, you are able to experience two worlds, although one at a time. The one you live is now, and the one where you spend 2 days. One has the history we know, the other indifferent history. The separation or bifurcation took place in the Battle of Panipat. You neither travel to the past nor to the future. You are in the present but experiencing a different world. Of course, by the same token, there must be many more different worlds arising out of bifurcations at different point of time. मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम सुझा रहे हो कि मैंने एक संसार से अवक्रमण कर दूसरे संसार में गया और अब वापस आ गया हूँ। गंगाधर पंत ने पूछा। यद्यपि वे अजीब गरीब लगता है, परंतु केवल यही स्पष्टीकरण में पेश कर सकता है। मेरा सिद्धांत यह है कि महाविपत्ति की स्थितियां दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करती हैं। ऐसा लगता है कि जहाँ तक वास्तविकता का संबंध है, सब विकल्प विकास क्षय होते हैं, किंतु उन्हें देखने वाला एक समय पर उनमें से एक को ही अनुभव कर सकता है। एक अवलंबन कर तुम दो संसारों का अनुभव कर सके, यद्यपि एक बार में एक हो। इनमें से एक वह जिसमें तुम रहते हो और एक वह जिसमें तुमने 2 दिन बिताए। एक जिसे हम जानते हैं वह इतिहास है और एक अलग इतिहास पानीपत के युद्ध के पृथक्करण या द्विशाखन घटित हुआ। ना तो तुमने अतीत में पाए, ना ही भविष्य में। तुम वर्तमान में थे, किंतु एक दूसरे संसार का अनुभव कर रहे थे। निश्चित ही इसी तरह और कोई अलग संसार है जिसका द्विशाखन द्वारा विभिन्न समयों पर प्रादुर्भाव हुआ है। As Rajendra concluded, Gangadhar Pant asked the question that was beginning to bother him most. But why did I make the transition? If I knew the answer, I would solve a great problem. Unfortunately, there are many unsolved questions in science, and this is one of them. But that doesn't stop me for guessing. Rajendra smiled and proceeded. You need some interaction to cause a transition. Perhaps at the time of the collision, you were thinking about the catastrophe theory and it rolled in war. Maybe you were wondering about the Battle of Panipat. Perhaps the neurons in your brain acted as a triggers. A good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way.
Professor Gayatunde said that was going to be the topic of my 1000 presidential address. अब राजेंद्र ने निष्कर्ष समाप्त किया। गंगाधर पंत ने ये प्रश्न किया कि जो उन्हें सबसे ज़्यादा चिंतित कर रहा था, किंतु मैंने ये पारगमन किया ही क्यों? अगर मैं ये उत्तर जानता तो मैंने एक बड़ी समस्या को हल किया होता। दुर्भाग्य से विज्ञान के कई अनसुलझे प्रश्न रह जाते हैं, ये उनमें से एक है, किंतु ये मुझे अनुमान लगाने से नहीं रोक सकता। राजेंद्र मुस्कुराए और आगे बढ़ा। पारगमन को होने के लिए तुम्हें कुछ बातचीत की ज़रूरत है। शायद टकराहट के समय केवल तुम महाविपत्ति के सिद्धांत व युद्धों में उसके रोल की बारे में सोच रहे हो सकता है कि तुम पानीपत के युद्ध के बारे में सोच रहे हो। शायद तुम्हारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स ने ट्रिगर का काम किया है। अच्छा अनुमान है। मैं वास्तव में सोच रहा था कि इतिहास ने कौन सा मोड़ लिया होता यदि युद्ध का परिणाम दूसरा हुआ होता। प्रोफेसर गायतुंडे ने कहा, यह मेरे 1000वें सभापति पद के संबोधन की विषय वस्तु होगी। नाउ you are in the happy position of recounting your real life experience rather than just speculating. Rajendra laughed, but Gangadhar was grave. No, Rajendra, my 1000th address was made on the Azad Maidan when I was so rudely interrupted. No, the Professor Gayatunde, who disappeared while defending his chair on the platform, will now never be seen presiding at another meeting. I have conveyed my regrets to the organizers of the Panipat seminar. अब तुम अपने वास्तविक जीवन के अनुभव का वर्णन करने के लिए एक बढ़िया स्थिति में हो, ना कि केवल अनुमान लगाने वाले। राजेंद्र हंसा, किंतु गंगाधर पंत थोड़े गंभीर थे। नहीं राजेंद्र, मेरा 1000वां संबोधन आज़ाद मैदान पर हुआ था, जब मुझे धृष्टता से रोका गया था। नहीं। प्रोफेसर गायतुंडे, जो अपनी कुर्सी को बचा रहा था और गायब हो गया था, अब किसी भी दूसरी मीटिंग का सभापति नहीं करेगा। मैं अपने खेत को पानीपत सेमिनार के आयोजकों को सूचित कर दूंगा। बच्चों, यह एक बहुत ही सुंदर तरीके से चैप्टर आपको समझाया गया है और मैं आशा करती हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। और इसको अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो विश्वास रखिए, सुनना भी पड़ेगा आपको, तो विश्वास रखिए इसमें आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। थोड़ा टिपिकल ज़रूर है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी आपको लग सकता है, लेकिन कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, उसको संभव हम बना सकते हैं अपने प्रयत्नों और समझदारी के साथ। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. And this is the end of the explanation of this chapter number 7, एडवेंचर। तो बच्चों, ये एडवेंचर के पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन था जो मैंने आपको समझाया है। इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, सुनिएगा, और अगर कहीं कोई डिफ़िकल्टी जाती है तो आप ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं और वहाँ पर पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगी कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि यदि हम कोई भी चीज़ का प्रयत्न करते हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।